أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکش پناہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرت پڑے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ صلی السلام علیہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں صرف سبحان اللہ کی ایک بات بتا کر کے اپنی تقریر شروع کروں گا اور اس کے بعد میں پوری تقریر میں آپ کو کہیں سبحان اللہ کہنے کے لیے نہیں کہوں گا، کیونکہ آپ ہم سرکار کی آمد کی محفل میں حاضر ہیں اور ایسے محفل میں حاضر ہیں کہ محفلوں کو اللہ کے فرشتے چراغ لے کر کے ڈھونڈا کرتے ہیں۔ آپ لوگ ہم لوگ بڑی خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں ایسی محفل عطا فرمائی۔ ابھی وقت کوئی خاص نہیں ہوا ہے، کل تو میں 3 بجے رات تقریر کی پہلے جگہ 8 کھمبا ادھر آپ کے ادھر پاس میں ہے، وہ لگ بھگ 1 بجے 1:30 بجے اپنا نمبر آیا اور 3 بجے تک تقریر کیا ہوا۔ تو خیر کوئی خاص وقت نہیں ہوا ہے، لیکن آپ لوگ بیداری کا ثبوت دیتے رہیے گا، کیونکہ ہم روزانہ جو ہے سوتے ہیں، روزانہ موبائل چلاتے ہیں۔ آج تو ابھی کوئی خاص رات نہیں ہوئی ہے، آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، تو بستر میں لیٹے لیٹے 1-2 گھنٹہ پار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے لوگ موبائل کے ذریعے گناہ میں بھی مبتلا ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ اچھے کام بھی کرتے ہیں، لیکن گناہوں میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ لیکن آپ یہ ایسے محفل میں بیٹھے ہیں کہ ان محفلوں کو اللہ کے فرشتے چراغ لے کر کے ڈھونڈا کرتے ہیں، اور صبح صادق سے پہلے رب تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے فرشتوں تم نے میرے بندے کو کس حال میں پایا، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ کے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ میرے مالک و مولا، اے میرے پروردگار، فلاں گاؤں میں، فلاں جگہ، فلاں محلہ میں، یعنی شیخ پرسا میں تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا، اور لوگ اپنی نیند کو قربان کر کے، اپنی بستر استراحت کو چھوڑ کر کے، اپنی آرام گاہ کو چھوڑ کر کے تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر سن رہے تھے، تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جا کہ اس محفل میں جتنے بھی لوگ شامل تھے، میں نے اس محفل پاک کی برکت سے تمام لوگوں کی تمام گناہوں کی بخشش فرما دی ہے۔ تو ہم ایسی محفل میں بیٹھے ہیں کہ اگر اللہ کو ہمارا یہ بیٹھنا پسند آ جائے تو بروز محشر قیامت کے دن یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہو سکتی ہے۔ اور میں نے کہا کہ میں آپ کو اس کے بعد سبحان اللہ کہنے کے لیے نہیں کہوں گا۔ اور آپ دیکھیے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ ایک مرتبہ زمین پر سبحان اللہ کہتا ہے تو سبحان اللہ کی برکت سے اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 نیکیاں اس کے نامۂ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے نامۂ اعمال میں 70 نیکیاں لکھی جاتی ہے، 70 گناہ مٹائے دیے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے نامۂ اعمال میں 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 700 گناہ
मिटा दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। अगर हम इस महफिल में अगर हम 10 मरतबा सुभान अल्लाह कहेंगे तो 7,000 गुनाह हमारे मिटा दिए जाएंगे, 7,000 नेकियां हमारे नामाए अमाल में दाखिल हो जाएंगी। उसके अलावा एक रिवायत में है कि जब कोई अल्लाह का बंदा एक मरतबा जमीन पर सुभान अल्लाह कहता है तो सुभान अल्लाह की बरकत से अर्श हिलने लगता है, आसमान गर्दिश करने लगता है। अल्लाह के फरिश्ते पूछते हैं कि ये आसमान तू क्यों इतना हिल रहा है, क्यों इतना गर्दिश कर रहा है? तो आसमान जवाब देता है कि फला गाँव में फला जगह अल्लाह और अल्लाह के महबूब का जिक्र हो रहा है और लोग मुसर्रत से सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह कह रहे हैं, इसलिए हम हिल रहे हैं, इसलिए हम गर्दिश कर रहे हैं। तो अल्लाह के फरिश्ते पूछते हैं कि कब तक तू इस तरह से हिलता रहेगा? तो अर्श जवाब देता है कि उस महफिल में जितने भी लोग शामिल हैं और सुभान अल्लाह कह रहे हैं, जब तक अल्लाह उन तमामों के गुनाहों की बख्शिश ना फरमा दे, हम ऐसे ही हिलते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। इसलिए जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह के दाद से नवाजे। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। जो दर्द ला दवा हो ये घोल कर पिला दो, जो दर्द ला दवा हो ये घोल कर पिला दो, क्या नुस्खा है शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। सुभान अल्लाह। एक मरतबा झूमकर दरूद शरीफ और पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सलातु वस्सलाम अलैहि या हबीबल्लाह नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बसद अंदाज ताई बगायत शादे ज़िबाई, बसद अंदाज ताई बगायत शादे ज़िबाई। अमी बनकर अमानत आमना के गोद में आई और हुजूर पुरनूर सैयदे आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की दिल अफरोज सात की तर्जुमानी, इमाम इश्क़ व मोहब्बत मुजद्दिदीन व मिल्लत हुजूर सैयदना सरकारे आला हज़रत और शाह इमाम मोहम्मद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बानी समात कीजिए। फरमाते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़े साहब पे लाखों सलाम। और जब रब्बे हबली उम्मती की सदा, इमाम इश्क़ व मोहब्बत हुजूर सैयदना सरकारे आला हज़रत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कानों से टकराई तो बेख्याल पुकार उठे, पहले सजदे पे रोजे अज़न से दुरूद, पहले सजदे पे रोजे अज़न से दुरूद, यादगारे उम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह आज की ये महफिल सरी हजरते आमना के लख्ते जिगर, हजरते अब्दुल्लाह के नूरे नजर, हजरते अब्दुल मुत्तलिब की राहतो जानो दिल, हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की
विलादत व सादत के लिए सजाई गई है। ये उस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत व सादत की महफिल है, जिनके लिए बज़्म कायनात संवारी गई, जिनके लिए महफिल कौनो माता सजाई गई, जिनके लिए हस्ती का चराग जलाया गया, जिनके लिए बादे को आलम को आरास्ता किया गया। और आप ये उस नबी की विलादत पाक की महफिल है जो बाइस से तखलीक़ कुल कायनात है। तभी तो इमाम मुश्को मोहब्बत और शाह इमाम मोहम्मद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेख्तियार पुकार उठते हैं कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जहान है तो जहान है। और अल्लाह ये उस नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत पाक की महफिल है, जिनके बारे में बरेली के ताजदार और शाह इमाम अहमद रज़ा खान बेख्तियार पुकार उठते हैं कि जमीन और ज़मीन तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, चुनी और चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए। रिवायत में आता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका मौला जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर पाक को पैदा फरमाया, तो रिवायत में आता है कतबा इस्महु अलल अर्श कि अल्लाह ने सबसे पहले आपके इसमें गिरामी को अर्श पर लिखा। क्यों लिखा? इसलिए लिखा ताकि अर्श वाले भी देख ले, शमशो कमर भी देख ले, खुशको तर भी देख ले, हूरो मलक भी देख ले, और जन्नत के दरबार भी देख ले, और आसमान के फरिश्ते जान ले उनकी शान और शौकत को। तभी तो पहले लिखा था और शाह इमाम अहमद रज़ा खान बेख्तियार पुकार उठते हैं कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। और साथ ये भी जान ले कि ये नबी अव्वल भी है, आखिर भी है, जाहिर भी है, बातिन भी है। और साथ में ये भी जान ले कि इनकी मिल्क में सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि हफ्तों आसमां अर्शो कुर्सी सब उन्हीं के जेरे लगी। तभी तो इमाम मुश्को मोहब्बत और शाह इमाम अहमद रज़ा खान बेख्तियार पुकार उठते हैं कि वही नूरे हक, वही जिले हक है, उन्हीं से सब है, उन्हीं का सब नहीं उसकी मिल्क में आसमां के जमीन नहीं के ज़मान है। अल्लाह अब आइए कुछ हिवालात खुलासा फरमाइए। तफसीर रूहुल बयान जिल्द 4 सफा नंबर 38, मिशकात शरीफ सफा नंबर 513, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 210। हमारे आका मौला जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यु व आदमा बैनल माए व तीन के अबुल बशर हज़रत सय्यदना आदम अला नबिय्यना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आबो गुल मिट्टी और पानी के दरमियान थे। मैं उस वक्त भी नबी था, यानी हज़रत आदम का वजूद भी नहीं था,
तब भी मैं नबी था। यानी जब आदम भी ना थे, ना जमीन थी, ना आसमान था, ना चांद और सूरज था, गर्ज के कुछ भी ना था, ना अब था ना तब था, कुछ भी ना था, मैं उस वक्त भी नबी था। अल्लाह के मोहतरम इसी हदीस से पाक का माना बयान करते हुए हजरत अल्लामा इस्माइल हक़ी अलैहि रहमत व रिदवान लिखते हैं, इन्नहु काना नबिय्यन बिल फेली आलिमन बिनबुव्वतिही के हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी बिल फेल नबी थे और अपनी नबूवत को जानते थे। यानी आपको ये इल्म था कि मैं नबी हूँ। यहाँ ना इल्म इलाही में नबी होने की बात है और ना ही किसी के वहम व गुमान की बात है और ना ही किसी तसव्वुर की चीज है, बल्कि आप उस वक्त भी हकीकतन में नबी थे। तभी तो इमाम मोहम्मद और शाह इमाम अहमद रज़ा खान क्या पुकार उठते हैं कि उनकी अबूवत उनकी नबूवत है सबको उम्मुल बशर उन्हीं के फैसले की है और हकीकत में मेरे दखल उस भूल की याद में ये सजा भी है। वही नूरे पाक, वही नूरे पाक नस्लन बादे नस्लिन पाक शिकमो तैयब व ताहिर सल्बो से होता हूँ। हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम मुबारक में आया बेशुमार अजायब व गरायब का सुदूर हुआ। शाहे कसरात के महलात में जलजला आ गया, दीवारें फट गई और उसके 14 कंगरे गिर पड़े। रिवायत में आता है नबी की माँ हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब से मेरा ये लाल मेरा ये चांद हजरत अब्दुल्लाह की अमानत मेरे शिकम मुबारक में तवल्लुद हुई, उस दिन से लेकर के हर महीने में कोई ना कोई अल्लाह का नबी, अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का रसूल मेरे पास आता और मुझे इस बच्चे की आमद की खुशखबरी सुनाता, मुझे मुबारक बात पेश करता। पहला महीना गुजरा, एक नबी आए, दूसरा महीना गुजरा, दूसरे नबी आते, तीसरा महीना गुजरता, तीसरे नबी आते, दस के महीने गुजरते गए, कोई ना कोई नबी आता और आपको मुबारक बात देता। हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि एक मर्तबा जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे शिकम में अभी जलवा फरमा है, अभी शिकम मुबारक से बाहर तशरीफ नहीं ले आए हैं कि नबी के दादा हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खानाए काबा शरीफ का तवाफ कर रहे हैं कि आप तवाफ कर रहे हैं। इतने में कुरैश के चंद लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचते हैं और जाकर के कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब ये तो बताइए क्या आप खानाए काबा के मुतवल्ली नहीं है? आपने फरमाया हाँ बेशक मैं खानाए काबा का मुतवल्ली हूँ। फिर पूछते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब क्या आप खानदाने कुरैश के सरदार नहीं हो? फरमाती है आप बेशक मैं खानदाने कुरैश का सरदार भी हूँ। तो खान तो तमाम कुरैश के लोग कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब ये बताइए क्या हमारे अरब का ये दस्तूर नहीं है? क्या हमारे कबीले का ये कानून नहीं है? ये रस्म रिवाज नहीं है कि अगर किसी औरत का शौहर मर जाए तो वो औरत एक साल तक शोक मनाती है, एक साल तक
अपने शौहर के लिए अफसोस करती है। हज़रात मोहतरम नबी अभी दुनिया में तशरीफ ही नहीं ले आए हैं कि नबी यतीम हो गए हैं। हमारे नबी के वालिद का साया साथ से उठ चुका है। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि हाँ ये दस्तूर है, ये कानून है, ये रस्म रिवाज है। यानी शोक में ये सब दाखिल था कि औरत जिस औरत का शौहर मर जाए वो औरत एक साल तक कंघा नहीं कर सकती थी। वो औरत एक साल तक खुशबू नहीं लगा सकती थी। वो औरत एक साल तक नए कपड़े नहीं पहन सकती थी। वो औरत एक साल तक बनाव श्रृंगार नहीं कर सकती थी। ये सब जो शोक में दाखिल था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि बेशक ये हमारे कबीले का रस्म रिवाज है कि एक साल तक शोक मनाना चाहिए। तो तमाम लोग कहते हैं तो फिर ए अब्दुल मुत्तलिब आपकी बेबहू और आपके बेटे की बीवी हजरत आमना हजरत अब्दुल्ला का शोक क्यों नहीं मनाती है? हजरत अब्दुल्ला का शोक क्यों नहीं मनाती है? उसने शोक मनाना क्यों छोड़ दिया है? अल्लाह अकबर। इतना कहना था कि नबी के दादा के चेहरे का रंग बदल जाता है और फरमाते हैं कि आप ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने मेरी बहू के अंदर मेरी बेटी के अंदर ये क्या देख लिया है कि तू शोक नहीं मनाती है? तो वो लोग कहते हैं कि आमना ऐसा इतर लगाती है, ऐसा खुशबू लगाती है कि वो जिधर से गुजरती है वो गली नहीं जाया करती है। वो ऐसा इतर लगाती है कि मक्का के बड़े-बड़े सरदारों के घर में वो खुशबू आपको नहीं मिलेगी। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था कि नबी के दादा का जो है आँख सुर्ख हो जाता है, चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है। सीधे खुशी की हालत में घर आते हैं और घर आने के बाद अपनी बीवी नबी की दादी हजरत फातिमा से पूछते हैं। मेरे नबी की दादी का नाम भी फातिमा था, याद रखते चलिएगा। पूछते हैं कि फातिमा जाकर के जरा आमना से पूछो कि उसने मेरे बेटे अब्दुल्ला का शोक मनाना क्यों छोड़ दिया है? क्या उसे मेरे बेटे अब्दुल्ला के जाने का गम नहीं है? इतना सुनना था कि नबी की दादी हजरत फातिमा फरमाश करती है कि मेरे सरकार मेरे शौहर मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, इतनी इस्तेताकत नहीं है कि मैं आमना से जाकर के ये सवाल कर सकूं, ऐसा पूछ सकूं। इसलिए कि एक दिन मुझे भी ये खुशबू महसूस हुई तो मैंने भी पूछना चाहा और सिर्फ इतना कहा था मेरे जबान से सिर्फ इतनी बात निकली थी कि आमना इतना ही सिर्फ कहा कि उनकी पेशानी से एक ऐसी रोशनी निकली, एक ऐसा नूर निकला और मेरी पेशानी से टकराई कि मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब मैं बेहोश हो गई तो इसलिए मैं नहीं पूछ सकती, इसलिए मेरे सरदार मेरे शौहर ऐसा करते हैं कि दोनों आदमी जाग चलते हैं, दोनों आदमी साथ चलते जाकर के पूछते हैं। अल्लाह अकबर।
दोनों चलते हैं। नबी के दादा भी जा रहे हैं, नबी की दादी भी है, दोनों साथ चल रही है। जब हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे के करीब पहुंचती है, कमरे के करीब पहुंचते हैं, हजरत आमना ने नबी की माँ ने देखा कि मेरे ससुर आ रहे हैं, मेरे शोहर के वालिद आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। पर्दे के साथ अदब व एहतराम के साथ हाथ बांध कर खड़ी हो जाती है और जब करीब आते हैं सलाम पेश करते हैं, उसके बाद कहते हैं अब्बा जान कैसे आना हुआ, आज आपके चेहरे का रंग क्यों बदला हुआ है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि आमना आज तुम्हारी वजह से मैं सारे कौम के सामने शर्मिंदा हो गया हूँ, आज तुम्हारी वजह से मेरा शर्म से मेरा सर झुक गया है। हजरत आमना जब इतना सुनती है तो बेचैन को बेकरार हो जाती है और अर्ज करती है कि मेरे अब्बा जान आखिर आपने क्या सुन लिया, आपने क्या देख लिया कि जिसकी वजह से आपका सर शर्म से झुक गया, आपका सर शर्म से झुक गया। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि बेटी आमना ये बता क्या तुझे मेरे बेटे अब्दुल्लाह के जाने का कोई गम नहीं है, क्या तुझे मेरे बेटे अब्दुल्लाह की जुदाई का कोई एहसास नहीं है। हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब ये सुनती है तो बेचैन और बेकरार होकर के चीख मारती है और कहती है कि अब्बा जान ये आपने क्या कह दिया कि मुझे अब्दुल्लाह के जाने का कोई गम नहीं है, मैंने अब्दुल्लाह का शोक मनाना छोड़ दिया है, आज आपने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। अब्बा जान ये आपने क्या कह दिया। अब्बा जान सच तो ये है कि जिस दिन से अब्दुल्लाह गए हैं उस दिन से आज तक मैं रात को चैन से नहीं सोई हूँ, बल्कि जिस दिन से अब्दुल्लाह गए हैं उस दिन से तो मेरी दुनिया ही गुजर गई है, मेरी सारी खुशियों पर पानी फिर गया है। अब्बा जान ये आप क्या कह रहे हैं, जिस दिन से अब्दुल्लाह गए हैं उस दिन से आज तक मैंने पेट भर करके खाना नहीं खाया है और आप कह रहे हैं कि मुझे अब्दुल्लाह के जाने का कोई गम नहीं है। अल्लाह अकबर। नबी के दादा ने इतना सुना तो पूछते हैं तो फिर बेटी ये बता तू खुशबू क्यों लगाती है, तू जिधर से गुजरती मक्का की सारी औरतें कहती हैं कि तू जिधर से गुजरती है वो गली में जाया करती है, तो ऐसा खुशबू लगाती है कि मक्का के बड़े बड़े सरदारों के घर में वो खुशबू नहीं मिल सकता। तो हजरत आमना फरमाती अर्ज करती है कि मेरे अब्बा जान आज आपने कुछ पूछ लिया है, आपने पूछा है अब्बा जान मामला ये है कि ये एक राज है जो मेरे सीने में दफन था, मैं इसको अपने सीने में दबाए रखी थी। अब्बा जान मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, मैंने कोई खुशबू नहीं लगाया है, बल्कि मामला ये है कि जिस दिन से आपके बेटे की अमानत हजरत अब्दुल्लाह की अमानत मेरे शिकम में मुबारक में आया है उस दिन से मैं जिधर से गुजरती हूँ वो ये राजा सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारा इलाका महक जाता है। तभी तो परेजी के ताजदार फरमाते हैं उनके महकने दिल के गुर्जे खिला दिए हैं, उनके महकने दिल के गुर्जे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कोचे बता।
हज़रत मोहतरम हज़रत अब्दुल्लाह हज़रत आमना अर्ज करते हैं कि मेरे अब्बा जान बस इतना ही महदूद नहीं है, यही तक महदूद नहीं है, बल्कि आप अंदर जाती हैं और अंदर से एक तकिया निकाल कर लाती है और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में देती है और अर्ज करती है अब्बा जान इस तकिए को देखिए, इस तकिए को सूंघिए, इस तकिए पर मैं अपना सर रख करके सोती हूँ तो ये तकिया महक रहा है, ये तकिया मुझको ऊपर से ज्यादा महक रहा है। फिर अंदर से एक दुपट्टा निकाल कर लाती है और ला करके कहती है अब्बा जान इस दुपट्टे को सूंघिए। एक मर्तबा मैंने इस दुपट्टे से अपने माथे का पसीना पूछ लिया था, अल्लाह अकबर, उस दिन से आज तक ये दुपट्टा महक रहा है। हालांकि मैं इस दुपट्टे को भी कई मर्तबा पानी से धो चुकी हूँ, जिस पानी से धोती हूँ वो पानी महक जाता है, खुशबू से वो पानी महक जाता है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था कि नबी के दादा दिल ही दिल में बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ने मेरी सुन ली, आज मेरी दुआ कबूल हो गई है। अल्लाह अकबर, नबी के दादा खुशी को मुसरत में झूम रहे हैं और सारी बातें सुनते जा रहे हैं। अभी नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं। अल्लाह अकबर, फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पूछते हैं ऐ मेरी बेटी जरा और बता, और भी कोई मामला है? तो हज़रत आमना अर्ज करती है अब्बा जान हाँ हाँ और भी बातें हैं कि जब आप खानाए काबा का हरम शरीफ का तवाफ करने के लिए जाते हैं तो घर में मेहमान आते हैं, पानी की जरूरत होती है तो पानी नहीं होता है तो मैं कुएं पर पानी लाने के लिए जाती हूँ तो अब्बा जान अरब की रेतीली जमीन, पथरीली जमीन, मैं जिस पत्थर पर अपना पैर रखती हूँ वो पत्थर रेशम से ज्यादा मुलायम हो जाते हैं, वो पत्थर मोम से ज्यादा नरम हो जाता है। अल्लाह अकबर, फिर आगे फरमाती है कि अब्बा जान यही तक महदूद नहीं कि मक्का मुकर्रमा की जितनी भी औरतें पानी लेने के लिए कुएं में जाती है तमाम औरतें हाथ में रस्सी और डोल लेकर के जाती है, मगर अब्बा जान जब से ये आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम मुबारक में आया है मैं रस्सी और डोल लेकर के नहीं जाती बल्कि खाली हाथ से पानी का बर्तन लेकर के जाती हूँ। और अब्बा जान जब मैं कुएं के करीब पहुंचती हूँ तो पानी खुशी से उछलता हुआ पानी खुशी से उछलता हुआ किनारे आ जाता है और मक्का मुकर्रमा की सारी औरतें मुझसे कहती है ये आमना तू यही खड़ी रहे और सबसे बाद में पानी भरना, वरना तू पानी लेकर के चली जाएगी तो पानी नीचे चला जाएगा, फिर हमें पानी खींचने में बड़ी तकलीफ होगी, इसलिए तू यही खड़ी रहे। अल्लाह अकबर, अब्बा जान मैं वही खड़ी रहती हूँ, पानी ऊपर रहता है, मक्का की सारी औरतें जब पानी भर लेती है तब मैं सबसे आखिर में पानी भर करके लेकर आती हूँ। उसके बाद अर्ज करती है अब्बा जान यही तक महदूद नहीं, जब मैं वापस आती हूँ, जब मैं पानी लेकर वापस आती हूँ तो देखती हूँ कि कभी दरख्त झुक जाते हैं, कभी दरख्त पेड़ पौधे मेरे कदमों में झुक जाते हैं तो कभी पत्थर बोलते हैं, कभी पत्थर बोलते हैं। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। नबी के दादा पूछते हैं कि बेटी क्या पत्थर ने भी कभी बोला है? पत्तू कहती है पत्थर बोलते हैं, कहती है अब्बा जान हाँ हाँ पत्थर बोलते हैं। अल्लाह अकबर, तो नबी के दादा पूछते हैं कि बेटी अगर पत्थर बोलते हैं तो क्या उसकी आवाज को तू सुनती है? अर्ज करती है हाँ अब्बा जान मैं उसकी आवाज को सुनती हूँ। फिर नबी के दादा पूछते हैं कि अगर पत्थर बोलते हैं उसकी आवाज तो सुनती है तो क्या उसकी आवाज तो समझती भी है? अर्ज करती है अब्बा जान हाँ हाँ
मैं पत्थर की बोली भी समझती हूँ। तो नबी के दादा पूछते हैं कि बेटी ये बता ये पत्थर क्या बोलते हैं? तो नबी की माँ फरमाती है कि पत्थर बोलते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बेशक नबी की माँ आप पर भी सलाम, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर भी सलाम। नबी की माँ आप पर भी सलाम, हबीबे खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर भी सलाम। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सुन्नी सलाम पढ़े तो कहते ये बरेली है, ये बरेली से सुनकर क्या आया, ये जलसे से आलिम लोगों से सुनकर क्या आया, बरेली से अहमद रजा से आला हजरत से सुन के आए। जरा पत्थर पर फतवा लगाओ, वो कौन से बरेली आए थे? क्या कहना है? वाह हक है। वो कौन से बरेली आए थे? वो कौन से जलसे में आए थे? और आप ये मोहतरम खैर मैं वो सब बातें बोल करके नबी की महफिल का मजाक खराब नहीं करना चाहता, नबी की महफिल का मजाक खराब नहीं करना चाहता। अल्लाह के मोहतरम नबी की माँ फरमाती है कि हर महीने कोई ना कोई नबी आता और मुझे मुबारक बात देता। अल्लाह अकबर। रिवायत में आता है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकम में मादर में 8 महीने के हुए तो फारस की आतिश का दाग बुझा, और जब 9 महीने के हुए तो शाही किसरा के सर से शाही ताज गिर पड़ा। और एक गिरता भी कैसे नहीं कि जिस रसूल ने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सुल्तान कौनो बका होने के बावजूद, मालिक को मुख्तार होने के बावजूद, दोनों आलम के खजानों के मालिक होने के बावजूद अल फक्र फखरी का शिवा इख्तियार करना हो, जिस रसूल को अपने पेट पर पत्थर बांधना हो, टूटे हुए हुजरे में रहना हो, हुजूर की टूटी हुई चटाई पर सोना हो, पूरी जिंदगी मुबारक, पूरी हयात तैयबा गरीबों मिस्किनों मुफलिसों बेसहारों बेकसों की दिलजोई के लिए बसर फरमानी हो, वो अजीम रसूल दुनिया में शान और शौकत तख्त और ताज हीरे जवाहरात सोने चांदी के अंबार को पाँव की ठोकर से नहीं मारेगा। तो फक्र फखरी का नारा कैसे सही होगा? तभी तो बरेली के ताजदार और शाह इमाम अहमद रजा खान बेख्तियार प्रकट होते हैं। कुल जहां मिलकर जौ की रोटी खिला उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह बेशक हक है माशाअल्लाह। और आज जब हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शिकम में मादर में 8 महीने के हुए तो पारस की आतिश कदा आग बुझ गई। अरे बुझती भी कैसे नहीं कि जिस रसूल कौने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बरोज़े महशर कयामत के दिन जहन्नम की आग ठंडी फरमा दी हो, वो अजीम रसूल अपनी विलादत से पहले फारस की आग कैसे नहीं ठंडी कर देगा? अरे ताज्जुब की क्या है कि फिरदौस से काला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाशा तो देखो कि आतिश दोज़ख लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद सुभान अल्लाह बेशक माशाअल्लाह हक है। हज़रात वाली दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब विलादत बसादत हुई तो कुफ्र और शिर्क की अंधेरियों में इस्लाम और तौहीद का चिराग जल उठा। इल्हाद और बातिल की जुल्मतों में हक को हिदायत की तंजीरें रोशन हो गई। फिस्क और फुजूर की सियाहियों में रुश्द और हिदायत की शम्मा जल उठी। जब शम्मा जल उठी फिस्क और फुजूर की सियाहियों में नेकी और शराफत का नूर फैल गया। वहशत और परफरियत की रातों में वहशत और परफरियत
की रातों में नेकी व सादत की सुबह नमोदार हो गई और सारी कायनात में हक को ईमान का उजाला फैल गया। अरे फैलता भी कैसे नहीं कि जिस रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जाकुल हक फरमाया हो, हक बातिल को मिटा देता है। जिस रसूल को अल्लाह ने जाकुल मिनल्लाह नूर का ताज पहना कर जलवा अफरोज फरमाया हो, नूर के सामने जुल्म आता है तो टूट कर चकनाचूर हो जाता है। जिस रसूल को अल्लाह ने सिराज मुनीरा के शरबत से मुशर्रफ फरमाया हो, सलाम पर चराग फरमाया हो, चराग अंधेरे को खत्म कर देता है, तारीकी को दूर कर देता है। और हजरात को तरफ रिवायत में आता है कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का सादत की रात शबे कदर की रात से भी अफजल व आला है, इसलिए कि शबे कदर की रात को कुरान उतरा है, इसलिए उस रात की इतनी बड़ी फजीलत है कि उस रात को हम लैलतुल कद्र की रात कहते हैं, शबे कदर की रात कहते हैं। और शबे कदर के बारे में हदीसों में आता है कि उस रात की इबादत हजार महीनों की इबादत से भी अफजल व आला है। रात क्यों? इसलिए कि शबे कदर की रात को, लैलतुल कद्र की रात को कुरान उतरा है, कुरान मुकद्दस का नुज़ूल हुआ है, इसलिए सारी दुनिया के मुसलमान उस रात को कुरान मुकद्दस की तिलावत करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, अल्लाह की तस्बीह और तहलील बयान करते हैं, रात भर शब बेदारी करते हैं, इसलिए कि उस रात की इबादत हजार महीनों की इबादत से अफजल व आला है। रात के दो तरफ, लेकिन 12वीं रबीउल अव्वल शरीफ की रात हमारे आका की विलादत की सादत की रात शबे कदर की रात से भी अफजल व आला इसलिए है कि उस रात को कुरान उतरा है, इसलिए उस रात की इतनी बड़ी बरकत और फजीलत है। तो 12वीं रबीउल अव्वल की रात को साहिबे कुरान उतरा है, कुरान वाला तशरीफ लाया है। कभी तो पढ़ेंगे ये तादाद बेख्याल पकार उठते हैं कि अल्लाह की सरकावा आदम शान है, ये इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है, ये कुरान ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, हक बेशक। सुनेगा सलाम पर सुनेगा, सुनेगा तो सुनने वाला बजाने वाला सिर्फ दीजिए तो गिरावट पड़ा जाए। एक बार जुमगर कर दीजिए सुभान अल्लाह। मकसूद कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब विलादत व सादत हुई तो बाग़े हस्ती में बहार आ गई। हुरूर ने दरूद पढ़ा, हुरूर ने दरूद पढ़ा, निगाह इधर निगाह फितरत ने अपने अजीम शाहकार को बशरियत के पर्दे उठाकर देखा। उधर खित्ताए अरब में धूम मच गई। मक्का मुकर्रमा की तमाम दाइया वाली के दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हासिल करने के लिए चल पड़ी। तेज रफ्तार सवारियां आगे निकल गई, मगर हजरत हलीमा सादिया जो बहुत ही कमजोर मुफलिस और नादार थी, आहिस्ता आहिस्ता चली जा रही है। हजरत हलीमा सादिया के ज़हन और दिमाग में तखय्युलात का हुजूम मचा हुआ है और अपने आप से कहीं जा रही है कि कहाँ मैं और कहाँ वो बच्चा जिसने पैदा होते ही बारगाहे रब्बुल इज्जत में सजदा किया हो और गुनाहगार बंदों की बख्शिश के लिए रब की बारगाह में दुआ करते हुए यूं अर्ज किया हो कि
रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। तभी तो पहले के ताजदार फरमाते हैं कि पहले सजदे पे रोज़े अज़न से दुरूद यादगारे उम्मत पे लाहो सलाम। हज़रत हलीमा सादिया की इस हसरत और अफसोस पर कुदरत मुस्कुराई और आवाज दी कि हलीमा, ये रहमत और बरकत का खजाना तेरे ही दामन में आएगा और ये दीन और दुनिया की सबसे कीमती दौलत तेरी ही झोली में डाली जाएगी और इसे दूध पिलाने की सादत भी तुझे ही नसीब होगी। सुभान अल्लाह। दाइयों ने, दूध पिलाने वालियों ने बहुत फख्र किया, दाइयों ने, दूध पिलाने वालियों ने अमीरों, नवाबों, सरमायादारों के बच्चों को लेकर बहुत फख्र किया कि मुआवजा बहुत मिलेगा, उजरत कसीर आएगी और इन बच्चों के मुकाबले में आमना के लगते जिगर अब्दुल्ला के नूरे नजर को कौन ले जाए। वालिद नहीं, माँ के घर में चराग नहीं, वो गुर्बत को मुफलिसी का साया है, मुआवजा कौन देगा। उजरत कितनी हाथ आएगी, रकम कितनी हाथ आएगी। उन दाइयों ने मेरे मुस्तफा को लेने से इनकार कर दिया, मगर वो कम नसीब दाइयां ये नहीं जानती थी कि ये बच्चा यतीम नहीं बल्कि दुर्रे यतीम है और खुदा के तमाम खजानों का मालिक है। ये सोने चांदी के अम्बार को उनके पाँव की ठोकर में है और सोने और हीरे जवाहरात के ढेर इनके कदमों तले है। और रात को तरफ इधर हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत को यास की तस्वीर बड़े बैठी है, बड़ी परेशान है, हैरान है कि कौन है जो मेरे बच्चे को गोद में उठाए, कौन है जो मेरे बच्चे को सीने से लगाए, कौन है जो मेरे बच्चे से प्यार करे, कौन है जो मेरे बच्चे को दूध पिलाए। अब हजरत यास की तस्वीर बने बैठी है। इतने में गली से आवाज आई, किसी ने पुकार कर कहा कि अगर किसी के पास कोई बच्चा हो तो वो मुझे दे दो, मैं उसे प्यार से दूध पिलाऊंगी, मोहब्बत से उसे गले लगाऊंगी, शफकत से उसके बोझे लूंगी। दूसरी दाइयों के मुकाबले में उजरत भी कम लूंगी। अल्लाह अकबर। जब हजरत हलीमा अपना सामना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये सुनती है तो खुशी से झूम उठती है और आवाज देती है कि बीबी अंदर आ जाओ, मेरे पास एक बच्चा है, बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, बस नूर का पैकर और चांद का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया अंदर आ जाती है, अंदर आ जाती है। हजरत आमना पूछती है कि बीबी क्या नाम है तुम्हारा। अर्ज करती है हलीमा, फिर पूछती है किस कबीले से ताल्लुक रखती हो। अर्ज करती है बनी साथ से। फिर पूछती है उजरत क्या लोगी। अर्ज करती है बहन जो चाहो दे देना। तो हजरत आमना फरमाती है तो अच्छा तो फिर उठा लो मेरे लाल को। हजरत हलीमा सादिया उजरत तय कर रही थी, उधर उनकी किस्मत तय रही थी कि हलीमा तू मुकद्दर पे नाच कर, ए हलीमा तू मुकद्दर पे नाच कर कि तेरी बोसीदा गुजरी में तो लाल आ गया। ए हलीमा तुम तो शहंशाह कौन मक्का को ले जा रही हो। ए हलीमा तुम तो दोनों आलम के मालिक को मुख्तार को ले जा रही हो। ए हलीमा तुम तो उस हस्ती को ले जा रही हो कि जिनकी जो खुदा के तमाम खजानों का मालिक है। ए हलीमा तुम तो उस हस्ती को ले जा रहे हो जिनकी हुकूमत सारी कायनात में है। ए हलीमा तुम तो उस हस्ती को ले जा रही हो जिनके बारे में मेरे इमाम फरमाते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक है अभी, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक है अभी। यानी मैं वो मुहिब में नहीं मेरा तेरा लाओ रब अर्श जिस
जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौन में नियामत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हक नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हक और फरमाते हैं वही नूर हक, वही जिल्ले हक है, उन्हीं से सब है, उन्हीं का सब नहीं। उसकी मिल्क में आसमां के जमीन नहीं, के जमा नहीं। अरे वो कौन ऐसी चीज है, कौन ऐसी शय है जो उस प्यारे बच्चे आमना के लफ्ते जिगर मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्ज़े कुदरत में नहीं था, आपके इख्तियार में नहीं। जैसे ही हज़रत हलीमा सादिया ने मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और आपके सीने अक़दस पर हाथ रखा, तो वो नूरानी पैकर, वो नूरानी सादतमंद बच्चा मुस्कुरा उठा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार का मुस्कुराना था कि मेरे सरकार की मुस्कुराहट की बरकत से हज़रत हलीमा सादिया की सारी थकान खत्म हो जाती है, सारी तकलीफें दूर हो जाती है, बल्कि सारी मुसीबतें भूल जाती है। बल्कि अब तो यह है कि जिंदगी की तमाम मुसीबतें भूल जाती है। अरे भूलती भी कैसे नहीं कि ये तो मेरे रसूल पाक का तबस्सुम था, जिनके बारे में बैले के ताजा फरमाते हैं कि जिसकी तस्वीर से रोते हुए हंस पड़ी, उस तबस्सुम के आदम पे लाखों सलाम। और जैसे ही मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चश्मे मुबारक खोली और हज़रत हलीमा सादिया पर नजरे इनायत डाली, तो बेख्तियार पुकार उठी कि जिस तरफ उड़ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उड़ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। रात दो तरफ हज़रत आमना, हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि जब मैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रात के अंधेरे में दूध पिलाती, तो मुझे चिराग की जरूरत नहीं पड़ती, रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि मेरे सरकार की वजह से, मेरे सरकार के नूर से मेरा सारा घर रोशन हो जाता, सारे घर में रोशनी रहती, बल्कि सूरज से भी, दिन से भी ज्यादा मेरा घर रोशन रहता। अल्लाह अकबर। हज़रत हलीमा फरमाती है कि एक दिन पड़ोस की एक औरत ने मुझसे पूछ लिया कि हलीमा, क्या तू आजकल रात भर चिराग जलाए रखती है, तो रात भर तेरे घर में रोशनी रहती है, तेरा घर रोशनी से भरा हुआ रहता है। तो हज़रत हलीमा सादिया फरमाती है कि मेरी बहन, मैं चिराग रात भर नहीं जलाती हूँ, बल्कि अब तो यह है कि मैंने आजकल चिराग जलाना ही छोड़ दिया है। ये तो मेरे अब्दुल्ला के नूरे नजर, आमना के लख्ते जिगर का उनके नूर की रोशनी है कि मेरे घर में रात भर रोशनी रहती है। अरे वो भी क्यों ना कि जिस हस्ती की जात चिराग मुनीरा हो, सरापा चिराग हो, जिसे अल्लाह ने नूर का ताज पैदा कर जलवा अफरोज फरमाया हो, तभी तो पढ़े लिखे ताजदार अरशद इमाम अहमद रज़ा खान बेख्तियार पुकार उठते हैं कि सुबह तैबा में कोई बढ़ता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में कोई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है गाना नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा नूर का, तू है तेरे नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह, अब मैं समझ रहा हूँ,
अब आखिरी बात कहकर के मैं रुखसत होना चाहूंगा। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत व सादत का वक्त आया तो आपकी विलादत व सादत के वक्त इस कदर रोशनी हो गई, इस कदर रोशनी हो गई कि जमीन व आसमान रोशन हो गए। सुभान अल्लाह। जमीन और आसमान रोशन हो गए। और तो ऐसा फरमाते हैं कि जमीन व आसमान रोशन हो गए और हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मक्का से बसरा तक साफ साफ देखा। सुभान अल्लाह। फरमाती है कि ऐसा लग रहा था कि जैसे चांद और तारे जमीन की तरफ झुके चले जा रहे हैं, चले आ रहे हैं। आफताब की ज़िया में अजब शान नजर आ रही थी। महताब शौक के ठीक से बेचैन बेताब हो रहा था। चिड़िया चहचहा रही थी। समंदर और दरियाओं का पानी खुशी से उछल रहा था। बादे सबा जन्नत के हर तरफ खुशबूदार हवाएं चल रही थी, चल हवाएं चल रही थी। गज़ के 12वीं रबीउल अव्वल शरीफ पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त 20 अप्रैल सन 573 ईस्वी को हजरत आदम की पेशानी का नूर, हजरत इब्राहिम के दिल का सुरूर, हजरत इस्माइल के राहते जानो दीन, हजरत हाशिम के घराने की शान, हजरत अब्दुल्ला व हाशिम के घराने की शान, बेकसूर का कस, बेसारों का सारा, गरीबों के वाली, बेवाओं और बेकसूर को सारा देने वाले रसूल, सैयदुल मुरसलीन, शफीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन, जिसे कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं पर कद जाकुमुल हक कहकर पुकारा है तो कहीं पर अल्लाह ने कद जाकुम मिनल्लाह नूर कहकर पुकारा है तो कहीं पर ताहा कहकर पुकारा है तो कहीं पर वद्दुहा कहकर पुकारा है तो कहीं पर वल्लैल कहा है तो कहीं पर इज़ा यग़शा कहा है तो कहीं पर या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कहा है तो कहीं पर या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा है तो कहीं पर ताहा कहा है तो कहीं पर सिराजन मुनीरा कहा है तो कहीं पर यासीन जैसे नया खिताब से याद फरमाया है। वही अजीम रसूल सैयदुल मुरसलीन शफीउल मुज़नबीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी मां की शिकवे मुबारक से इस दुनिया में तवल्लुद हुए तो शम्सो कमर बहरो पर खुशबू पर जिन्नो बशर हूरो मलक शजर व हजर गर्द के पूरी कायनात मसरूफ सलातो सलाम थी। कभी तो किसी कहने वाले ने बरेली के ताजदार अशरफ इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कलाम में क्या एक खूबसूरत तस्वीर पेश की है। इस जमाने में आए बहुत आने वाले, जमाने में आए बहुत आने वाले, नहीं आया कोई दूसरा आने वाले, सिराजन मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते ऐसा पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हालात अब काफी वक्त हो रहा है। आप लोगों ने ये महफिल, ये जलसा हमारे मुहिब्बे गिरामी आली बाकार, आलिम बामर, आलिम नबील, फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना कमर रजा साहब
क़िबला मदजिलहुल आली वो नूरानी के साथ में कंधे से कंधा मिला करके कदम से कदम मिला करके सजाया है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में, इल्म में, अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए और ऐसे ही हर साल आप लोग जलसा मुनाकिद करते रहे। आइए मैं एक आखिरी हदीस आपको सुना करके रुखसत हो जाऊंगा। आप लोगों ने खर्चा किया, आप लोग खर्चा करते हैं, उलमाए किराम को बुलाते हैं, महफिले मिलाद मुनाकिद करते हैं, तो आपका ये पैसा जाएगा नहीं जाता है। हज़रात मोहतरम, अगर आप अपनी औलाद पर भी खर्चा करते हैं, हालांकि औलाद की परवरिश करना भी एक तरह से इबादत है, लेकिन कसम खुदा की अगर औलाद को पढ़ाई लिखाई, उसकी अच्छा सफाई सुथराई, उसका पूर्णा पहना, हर चीज में आप लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि आगे चल करके जब बच्चा आपका साथ दे, आपके की देखभाल करे। रात को तरफ अगर आप लाखों रुपए खर्च करते हैं तो आपको उसका हिसाब भी देना है, लेकिन आप मिलाते मुस्तफा पर मस्जिद मदरसों में नेक काम में खर्च करते हैं तो इसका आपको कोई हिसाब नहीं देना है और इसका अजर और सवाब आपको यहाँ भी मिलना है और आखिरत में भी मिलना है। रात को तरफ आइए मैं मिलाते मुस्तफा के सिलसिले से एक हदीस बयान करके रुखसत हो जाऊं। आप लोगों ने इतना खर्चा किया, हालात मोहतरम आज हर बाद लोग सबूत भी मांगते हैं ना मिलादे मुस्तफा का, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। अन्यामतुल कुबरा अलग आलम सफा नंबर 7 का बाब, बेशक 5 पेज पूरा 5 सफा। अगर मैं 5 सफा अगर बयान करना तो और 1 घंटा चाहिए। अगर मैं 5 सफा को बयान कर दूं और 1 घंटा, लेकिन नहीं सिर्फ मैं एक हदीस 2 मिनट कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, आला अबू बकर सिद्दीक मन अनफका दिरहमन अला क़िरातिन मौलूदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम